Good evening, students. Students, we have started chapter number 2, Writing and City Life, in which we have already discussed the geographical condition of Mesopotamia, the modern day Iraq, the economic condition, and the factors that affects the Mesopotamia. In this video, we will discuss the topic life in the city. It means we will learn about the ordinary people of Mesopotamia, about the nuclear family, what was the condition of the people who were living in the Mesopotamia, what rituals, what traditions they were following. Were they following the hierarchy level? Was there any hierarchy level? Hierarchy means top, then middle, then lower class, or was something else? So in this video we will discuss life in the city. Student, if I am talking about the Mesopotamia, in the beginning, a ruling elite class had emerged in Mesopotamia. The ruling elite means the rich person who ruled over Mesopotamia. First of all, they emerged in Mesopotamia. In the previous video, I have told you that it was a small section of the society but had a major share of the wealth, and a number of valuable things were buried with these people when they died. These things included jewelry, gold, wooden musical instruments, gold vessels, and lapis lazuli, ceremonial daggers of the gold, etc. It means in Mesopotamia, first of all, there was the elites, ruling elites, and when they died, बहुत सारी चीज़ें जो थी उनके साथ बरी की जाती थी. बट अपार्ट फ्रॉम दिस, there was also society who mainly follow the nuclear system. It means if I am talking about the nature of the family, the legal text of the dispute and inheritance matters tell that in Mesopotamian society the nuclear family was the main condition. It means every family has to live with the not with the parents but with the nuclear family. Nuclear family होती है small family जहाँ हम अपने parents के साथ नहीं रहते हैं. So a married son and his family generally resided with his parents, and the main head of the family was the father, of course. आज हम बात करें न्यूक्लियर फैमिली में कौन होता है, पेरेंट्स होते हैं और उनके बच्चे होते हैं. सिमिलरली मेसोपोटामिया में भी था कि जो मैरिड सन था या उसकी फैमिली थी, दे मेनली रिसाइडेड विद द पेरेंट्स, एंड द हेड, द कर्ता ऑफ द फैमिली वॉज द मेन फादर. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द मैरिज सिस्टम, वहाँ क्या था, अ डिक्लेरेशन वॉज मेड अबाउट द प्रोसीजर फॉर मैरिजेस. आफ्टर दैट द ब्राइड्स पेरेंट gave their consent to the marriage. Then a gift was given to the bride family by the groom's family. Gifts were exchanged by both party after the wedding. Both the party used to eat together and offered together in a temple. The bride was given her share of inheritance by her father when bride's mother-in-law came to bring her, and sons used to inherit the house, herds, fields of the father. It means one main thing in the Mesopotamia, आज भी यही होता है. जैसे मैरिज होती है, हम इकट्ठा खाना खाते हैं, इकट्ठे बैठते उठते हैं, बट द मेन स्पेशलिटी ऑफ मेसोपोटामियन पीपल दैट एट द टाइम ऑफ मैरिज they even gave the inheritance and the property rights to the bride. It means इंडियन सोसाइटी में हम मेनली देखते हैं कि जब एक ब्राइड घर छोड़कर जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी में, उसके फादर की प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा वो शेयर क्लेम नहीं कर पाती है, बट मेसोपोटामियन पीपल्स जो थे वो उनको अपना शेयर देते थे. एंड स्टूडेंट, मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिटी ऑफ उर. उर क्या है? Ur, it is a city. Ur is one of the earliest city of Mesopotamia, which was excavated near about 1930. And student, life in the city, if we are talking about, so we must have knowledge about the cities of Mesopotamia. There were so many cities in the Mesopotamia, but the main was Ur.
अपार्ट फ्रॉम उर देयर वॉज मारी, देयर वॉज उरुक, और भी सिटीज़ थी, लेकिन जो मेन करेक्टरिस्टिक है उर, क्योंकि उर बहुत इस्टेब्लिश था तो हम उर के ही बारे में डिस्कस करेंगे. इट मीन्स उसके करेक्टरिस्टिक, उसके मेन फीचर्स के बारे में बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन उर द नैरो वाइंडिंग स्ट्रीट हैड बिन फाउंड. जो गलियाँ थी वो बहुत नैरो थी. एंड इवन स्टूडेंट, दीज स्ट्रीट सजेस्ट दैट व्हील्ड कार्स वर अनेबल टू रीच मैनी ऑफ द हाउसेज. इतनी भीड़ी गलियाँ थी कि कार्स नहीं पहुँचते थे, व्हील कार. डोंकी बैग्स वुड हैव बीन यूज्ड टू कैरी grains and the firewood. And students, somewhere irregular shape of house, irregular shape of plots, and narrow winded streets, it clearly indicate toward the lack of town planning. अगर टाउन प्लानिंग होती तो इतनी नैरो स्ट्रीट्स बनती ही ना. तो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का जो उर हम पढ़ रहे हैं, उर टाउन के बारे में पढ़ रहे हैं, सबसे मेन फीचर वो था नैरो वाइंडेड स्ट्रीट्स थी. वुडन और व्हील कार्स, दे वर अनएबल टू रीच मैनी पार्ट ऑफ द हाउसेस. Then the next, if I'm talking about the drainage system, what was the drainage system in Ur? The city, they lacked street drains. In the inner courtyard of the houses, mainly drains and clay pipes were found, and house roofs, it was sloped inward. Rainwater, it was challenged through the drain pipes into sumps in the inner courtyard. And this was one of the method preventing the streets from becoming excessively slushy after the rainfall. It means student, जो ड्रेनेज सिस्टम था, ड्रेनेज सिस्टम इस तरह से था कि अगर कभी बारिश होती थी तो बारिश का सारा पानी रूफ से अंदर की तरफ ही स्लोप किया गया. जो हाउस रूफ की शेप थी, स्लोप किया गया, दैट इट वाज इनवर्ड. एंड जब भी बारिश आती थी तो जो रेन वाटर था, इट वॉज चैलेंज थ्रू द ड्रेन पाइप्स इनटू द सम्स टू द इनर कोर्टयार्ड, ताकि बाहर गलियाँ जो हैं गंदी ना हो, क्योंकि इतनी भीड़ी गलियाँ थी. ऑफ कोर्स सारा का सारा जो पानी था वो भी घर के अंदर ही भरता था. अब स्टूडेंट, इससे आप ये पूछ रहे होंगे कि अगर घर के अंदर सारा पानी भरता होगा तो जो नेक्स्ट फीचर होगा वो यही होगा ना हमारा क्वेश्चन मार्क, अबाउट द क्लीननेस ऑफ द हाउस. द पीपल हु आर लिविंग इन द उर इन मेसोपोटामिया, they were suffering from narrow-winded street. It results into lack of drainage system. Then cleanliness of the house. People, they swept off their household waste into the streets to be trodden underfoot, and this helped in raising the street level. Sometimes the floor of the houses had also been raised to prevent the mud from coming inside the house after the rains. It means the houses were not clean. जितना भी अपना वेस्ट होता था घर का वो सब बाहर फेंक देते थे. एंड इससे क्या होता था, बाहर फेंकने से जो स्ट्रीट लेवल था वो डे बाय डे क्या होता था, बढ़ता जाता था, क्योंकि गंद जो है सारा का सारा वेस्ट इकट्ठा होता जाता था, जिसकी वजह से सारा वेस्ट एक टाइम पे क्या होने लगता था, अंदर आने लगता था. इट मीन्स साफ़ सफाई भी नहीं थी, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं था, नैरो वाइंडेड स्ट्रीट्स थी, एंड the absence of windows also was a main characteristic of the houses in Ur. There were no windows in the rooms. Light used to come into the rooms through the doorways which were opening into courtyard. कोई विंडो नहीं थी, सारी की सारी जो लाइट थी वो कहाँ से आती थी, मेनली डोरवे से, जो बड़े बड़े आंगन थे वहाँ से. एंड स्टूडेंट, इसकी एक प्लस पॉइंट क्या थी, क्योंकि रूम्स में कोई विंडो नहीं थी, समवेयर जो वहाँ लोग रहते थे उनको प्रिवेसी मिल जाती थी कि हाँ भाई कोई विंडो नहीं है. लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी था कि कई बार बहुत ज़्यादा कंजस्टेड कह लो या सांस लेने में उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी और मेसोपोटामियंस लोगों को. एंड स्टूडेंट, one more thing, that Mesopotamians, they were very superstitious people. Superstitious होते हैं अंधविश्वासी लोग, जो शायद पिछली बातों में या पिछले ज़माने के बातों में बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं. they were superstitious. उनका मानना ये था
उनको जो हाउसेस हैं उनको लेकर उनको बहुत सुपरस्टिशियस होते थे, मतलब हाउस की दशा ये होनी चाहिए, दिशा कह रही हूँ, दिशा ये होनी चाहिए, एंड यहाँ इसका दरवाज़ा होना चाहिए, यहाँ इसकी विंडो होनी चाहिए, अगर ये यहाँ नहीं रखा तो कुछ ऐसा हो जाएगा. सो वो मानते थे कि दैट हाउस वॉज लकी हुज फ्रंट डोर डिडंट ओपन टूवर्ड द अनदर हाउस, जिसका जो मेन गेट है उसके सामने अगर कोई दूसरा गेट नहीं होगा, क्योंकि अगर हम किसी स्ट्रीट में रह रहे हैं, किसी गली में रहते हैं, तो हम अक्सर देखते हैं कि हमारा दरवाज़ा और सामने वाले नेबर का दरवाज़ा एक साथ भी होता है कई बार. बट वो मानते थे दैट हाउस वॉज लकी हुज फ्रंट डोर डिडंट ओपन टूवर्ड द अनदर हाउस. सो ये इनका एक सुपरस्टिशियस था. और बच्चे ये हमें कहाँ से पता लगता है उर के बारे में, जितना भी हम पढ़ रहे हैं, दैट द नैरो माइंडेड स्ट्रीट, ड्रेनेज सिस्टम, क्लीननेस ऑफ हाउस, इट वॉज रिटन इन द क्ले टैबलेट विच वॉज फाउंडेड और रिकॉर्डेड इन ओमान टैबलेट्स इन उर. ओमान में बहुत सारी टैबलेट्स मिली हैं, वहाँ से हमें इनके बारे में पता लगता है. एंड स्टूडेंट, ब्यूरल ऑफ द डेड. There was a town cemetery at Ur, and graves of the royal people and the common people have been found, but few people were also found buried under the floors of the ordinary house. No doubt बच्चे वहाँ पे सारा सिस्टम था कि अगर कोई मर जाए तो उसको कहाँ दफनाना है या उसको क्या करना है. बट बहुत सारे ऐसे लोग थे मेसोपोटामिया में, क्योंकि मेसोपोटामियन के जितने भी हम घर देखेंगे वहाँ थोड़े से कोर्टयार्ड बहुत बड़े बड़े थे. कोर्टयार्ड मतलब घर खुले होते थे, और घर खुले रखने की बजाय उन्होंने क्या कर दिया, स्ट्रीट जो है नैरो कर दी. इस वजह से बहुत सारे लोग जो हैं खुद को कहाँ जो अपने जितने भी मरते थे लोग उनको घरों में ही दफना देते थे, घरों में ही वो बरिड हो जाते थे. और उसके साथ उनका ये मानना था कि कुछ ऐसी चीज़ें जो उनको दी जाएं, जैसे ज्वेलरी दी जाए, बेड दिया जाए, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट दिया जाए, गोल्ड वेसल्स दिए जाए, तो क्योंकि उनको लगता था कि ये जो सारी चीज़ें हैं मरने के बाद उस पर्सन के काम आएंगी. इट मीन्स समवेयर दे वर द बिलीवर्स ऑफ रीबर्थ. उनको था कि जहाँ पे भी ये बॉडी जाएगी या दोबारा जन्म लेगी या बीच में कहीं पे भी, ये जो सारी चीज़ें हैं जो हम दे रहे हैं उनको, बेड, चादर, गोल्ड वेसल एंड ज्वेलरी, ये सब चीज़ें क्या हैं, उनके काम आएंगी. तो स्टूडेंट, इन दिस वीडियो हमने 2 पॉइंट्स कवर किए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द family, about the position of the upper class, the nature of the family, the marriage system in the Mesopotamia. main points आप क्या याद रखेंगे, दैट फर्स्ट न्यूक्लियर फैमिली थी. न्यूक्लियर फैमिली का मीनिंग अगर आपको क्लियर होगा, इट मीन्स द सन एंड हिज फैमिली, दे वर रिसाइडेड विद द पेरेंट्स. मैरिज सिस्टम क्या था, जैसे नॉर्मल मैरिज सिस्टम होता है वैसे, बट इसमें सबसे मेन चीज़ थी दैट द ब्राइड दे कुड क्लेम देयर राइट्स इन द प्रॉपर्टी ऑफ फादर. देन द मेन करेक्टरिस्टिक में मेन पॉइंट्स कवर हुए, दैट द नैरो वाइंडेड स्ट्रीट्स, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड एरिया था, वहाँ पे व्हील कार्ट तक नहीं जाते थे. देन ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेन्स एंड क्ले पाइप्स वर फाउंड इन द इनर कोर्टयार्ड, बट द हाउस की जो रूफ्स थी दे वर स्लोप इनवर्ड्स, सो दैट द जो एक्सेसिव स्लशी वाटर है वो बाहर ना जाए. क्लीननेस ऑफ हाउस, बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं थे हाउस, क्योंकि वो सारा का सारा अपना जो वेस्ट था वो बाहर फेंकते थे. देन द एब्सेंस ऑफ विंडोज एंड द सुपरस्टिशंस अबाउट द हाउसेस. It means house was lucky whose front door didn't open toward the another house. So I hope student this topic is clear to you. If you have any doubt you can call me students. Otherwise in online classes we will take the query regarding this topic. Thank you students.